بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمیشہ کمپلیکس میں سبیل جنتری کا اجرا ہوا، جس کو مرتب کیا ہے مولانا حبیب الرحمن رشادی نے، ویسے ہر سال ان کی جنتریاں 2017 سے آ رہی ہیں۔ اب کی بار بہت ہی ضخیم 120 صفحات پر مشتمل یہ جنتری معلومات کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ خزانہ ہے۔ تمام کے لیے یہ جنتری بہت ہی فائدہ مند ہے، معلومات افزا ہے۔ اس مناسبت سے انہوں نے مساجد کے ائمہ کو، مساجد کے متولیان کو اور دیگر شہر میں جو تعلیم کے میدان میں، سماجی میدان میں جو نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کو بھی انہوں نے جمع کر لیا ہے، اور ان تمام کو انہوں نے شال پوشی کی ہے اور مومنٹو دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سند بھی ان کی ہمت افزائی کے لیے انہوں نے دی ہے۔ اس طرح یہ جلسہ کئی مقاصد کو لے کر بہت ہی بحسن و خوبی کامیاب رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2009 میں اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا، سبیل جنتری کے نام سے ملکی سطح پر وہ مشہور ہوئی۔ ہماری یہ سوچ تھی کہ اوقات الصلاۃ یہ ہر مسلمان کی ضرورت کی چیز ہے۔ اس حوالے سے مختصر سے معلومات کے ساتھ میں نے اس کا آغاز کیا۔ 64 صفحات پر مشتمل یہ جنتری پہلی بار شائع ہوئی تھی۔ اب اس کا 15واں سال ہے، لیکن دو مرتبہ دو ایڈیشن زائد شائع ہونے سے ہم نے اس کو 17واں سال کہا ہے۔ 2023 کی جو سبیل جنتری شائع ہوئی ہے، جس کا ابھی اجرا عمل میں آیا اکابر علماء کے ہاتھوں سے، جن میں حضرت علامہ صغیر احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم شیخ الحدیث و محتمم دارالعلوم سبیل الرشاد امیر شہید کرناٹک بھی جلوہ افروز تھے۔ شہر کے موقر علماء کرام، مفتی افتخار صاحب، میرے ساتھی مولانا محمد مقصود عمران صاحب رشادی، اسی طرح دیگر اکابر علماء کے بیچو بیچ خواص اور عوام، علماء اور طلباء کے درمیان ہم نے آج کا اس کا اجرائی پروگرام دیکھا ہے۔ اس مرتبہ کی اشاعت میں خاص بات یہ ہے کہ ہم نے ہر عنوان کے تحت 10 چیزوں کو لینے کی ہم نے کوشش کی۔ جس طرح ایک بات مشہور ہے، زبان زد ہے کہ ٹاپ 10، اس طرح ہم نے جو ہے 10 چیزوں کا انتخاب کیا ہے، اور اس کے علاوہ عشرہ مبشرہ کی بھی ایک نسبت ہے۔ کل ملا کر اس مرتبہ کی جنتری اب تک کی ایڈیشنز کے مقابلے میں بہت نمایاں ہیں، بہت معلوماتی ہیں۔ ائمہ حرم مکی و مدنی کے نام اور ان کے اسماء گرامی وہاں شامل ہیں، اور شہر بنگلور میں کتنے علماء طویل عرصے سے 20 سال سے زائد وقت سے جو خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کی ایک فہرست ہم نے اس مرتبہ نہیں بنائی ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کسی نہ کسی زمرے میں، کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی عنوان کے تحت جن سے عوام کا ربط ہے، قوم کا تعلق ہے، وہ سارے نمبرات اور ساری تفصیلات اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ اسی طرح مدارس میں ہم نے 10 کا ہی انتخاب کیا اور اس کو ہم نے ترجیح دی ہے۔ اس کے علاوہ
मालूमात में अब तक 2-4 एडिशन में हमारे यहाँ आज़ादी के बाद से अब तक कितने पीएम गुजरे हैं, अब मौजूदा पीएम कौन है, हमने उनकी तफसीलात रखी है, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है, हमें उसका इल्म रहता है। और इस मरतबा हमने जितने सुदूर गुजरे हैं आज़ादी के बाद से, तमाम सुदूर के नामे नामी इसमें गिरामी मौजूदा जो सदर मोहतरमा हैं उनका भी हमने नाम शामिल कर दिया है। अगर कोई सबील जंत्री को रब्ता करना चाहे तो किस नंबर पर रब्ता है? सबील जंत्री के लिए राबता नंबर जंत्री पर मौजूद है। वैसे जंत्री रहे तो जंत्री का नंबर मिलेगा। जंत्री तक पहुंचने के लिए जितने बुक डिपोस हैं, जितने मकातिब हैं और जितने बुक सेलर हैं, तकरीबन रियासती सतह पर तमाम बुक डिपो में ये दस्तयाब हैं। इस मरतबा जंत्री कुछ ताख़िर से शाई हुई, राजस्थान से इसके बारे में पूछा गया, हैदराबाद से इसका फ़ोन आया, तमिलनाडु से इसके बारे में फ़ोन आते रहे, बुक डिपो वाले बहुत तकाज़े करते रहे कि ये नवंबर में दिसंबर में आने की जंत्री अभी शाई नहीं हुई ना, तो इस मरतबा ताख़िर हुई। मसला ये है कि इसके जो मशमूलात हैं, ये मशमूलात को हासिल करने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बैक वक्त सारी तफसीलात हमें दस्तयाब नहीं होती। इस तक रसाई के लिए आपका चैनल है, आपका मीडिया है, ये भी हमारे इस जंत्री की इशाअत में और इसके फैलाव में, इसके वसाअत में आपका मीडिया भी मददगार और मुइन है। इसी तरह अखबारी तबसरे भी होते रहते हैं, खुसूसन सालार, रोज़नामा सालार बेंगलोर, इसका भी बड़ा रोल है। इसी तरह इसके शाइकीन होते हैं, कुछ ताजरीन होते हैं, कुछ मुस्तफ़ीदीन होते हैं, कुछ मुताल्लिकीन होते हैं। यानी अब तो ऐसा है कि हमने रसोई गैस हासिल करने के लिए बुकिंग का नंबर भी, बुकिंग का खाना भी रखा और डिलीवरी का खाना भी रखा कि कब ख़त्म हो रही गैस, कब आ रही। तो किचन रूम से लेकर दफ्तर तक, ऑफिस रूम तक इस जंत्री की ज़रूरत पेश आती है। जैसा कि मुफ्ती इफ्तिखार साहब ने फरमाया कि हम तो ये दफ्तर में 2-2, 3-3 आदत रखते हैं। और मुफ्ती अशरफ अली साहब ने एक मरतबा फरमाया, बाबा आपने मेरा नंबर दे दिया, शिमाल से फ़ोन आता, राजस्थान से फ़ोन आता, मध्य प्रदेश से फ़ोन आता, लोग मसाइल दरियाफ़्त करते हैं। तो मुझे इस बात पर 2 खुशी हुई, एक तो मेरी जंत्री वहाँ तक पहुँची, उसका मुझे इल्म हो गया, दूसरा हज़रत का नंबर शामिल होने पर हज़रत को कोई ज़हमत नहीं। बहरहाल इंटरनेट और तरक्की के दौर में भी जंत्री की ज़रूरत का इनकार नहीं किया जा सकता है। इस मरतबा ताख़ीर से हमें उसका शदीद एहसास हुआ और हमें उस पर अफसोस भी है कि शायद होने में ताख़ीर हुई, लेकिन इसमें हमें ये राज मालूम हुआ, ये इसकी मांग मालूम हुई कि इसकी कितनी ज़रूरत है लोगों को, आवाम खवास सभी को। तो क्या मौलाना आने वाले दिनों में डिजिटल आपके दौरान आवाम नाज तक पहुँचेगी ये जंत्री? हाँ यकीनन, दौर तो उसी अंदाज से चल रहा है, सारी चीज़ें डिजिटल हो रही है, वो हिसाब से हम भी उसको इस तरह पेश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नेट में और डिजिटलाइज में जो चीज़ें हैं वो किताबों से, हार्ड कापी से ही आती है, इसलिए हम उसको ज़ोर देते हैं, उसी को फैलाने की कोशिश करते हैं। बाल ताल्लुक से कितनी मुफीद चीज़ है ये? हर तबके के लिए, तालिब इल्मों के लिए, असातिज़ा के लिए, डॉक्टरों के लिए और कौम के मुख्तलिफ लोग, तबक़ात के लोगों के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। जहाँ की उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, ज़रूरत पूरी न होने के मौके पर उनका फ़ोन नंबर हासिल करके उनके ज़रिए से वो बहुत सारे मसाइल हल कर लेते हैं। बहुत इस एतबार से बहुत सारे फ़ायदे से खाली नहीं है, बहुत सारा फ़ायदा हम है इसमें, और कब उनको तरक्की का मौका है, ये बना दे, मेरी दुआ है। आज के इस मौके पर क्या पैगाम? हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब रशादी जो मस्जिद गुंबज़ के ख़तीब व इमाम भी हैं, और यहाँ जो कैंपस है 4 एकड़ जगह है हमारी, हज़रत हमीद शाह और हज़रत मुहिब शाह, तो उस जगह में माशाअल्लाह आज मुख्तलिफ़ चीज़ों का यहाँ जलसा हो रहा, मुनक़िद हुआ है। सबील जंतरी ये जो किताब है, इसे आप एक किताब ना समझे बल्कि एक जंतरी है। इसमें हॉस्पिटल्स के नंबर भी हैं, वकला के नंबर भी हैं, और मदारिस के नंबर भी हैं, मशाहिर उलमा के नंबर भी हैं, खुतबा के नंबर भी हैं, और मुल्क के अकाबिरीन के नंबर भी हैं। तो इससे बड़ी सहूलत हो जाती है
कि अगर कहीं ब्लड डोनेशन से जो कैंप हैं या सेंटर्स हैं उनकी जानकारी चाहिए तो इसके ज़रिए से हम बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो आज उसका एक इजरा था, पहले मुख्तसर पेजों में ये शुरू हुई थी जंतरी। अब अल्लाह का शुक्र है कि एक ज़ख़ीम अंदाज में बहुत सारी चीज़ों को जमा करके इन्होंने आज इसका इजरा किया है। और इसके साथ साथ माशाअल्लाह मौलाना बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। अरबी नहू पर भी आपने लिखा है, अरबी सर्फ पर भी आपने लिखा है और दूसरे उन्वानात पे भी आपने मुख्तलिफ़ अनावीन को जमा करके किताबों को तसनीफ़ किया है। आज हज़रात अकाबिरीन और ख़ास तौर पर हज़रत अमीर शरीयत क़िबला दामत बरकातुहुम के दस्ते मुबारक से और अकाबिरीन के हाथों से आज बहुत सारी चीज़ों का इजरा अमल में आया। उम्मत को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि जंतरी से भी फ़ायदा उठाएं और यहाँ चूँकि 4 एकड़ जगह है, यहाँ ब्लड भी मिलता है। अगर किसी को खून की ज़रूरत पेश आती है तो वो यहाँ आए। और इसी तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी यहाँ फ्री इंतज़ाम है, अगर जिसके पास BPL कार्ड हो वो आके यहाँ इलाज करा सकते हैं। और साथ ही साथ इस कैंपस में आप देखेंगे तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ लड़कियों के लिए हॉस्टल है। चूँकि आमतौर से लड़कियों के लिए हॉस्टल मुहैया नहीं होती, तो यहाँ लड़कियों के लिए हॉस्टल का इंतज़ाम किया गया है। दूर दराज हमारी रियासत से यहाँ आके पढ़ना चाहते हैं तो वो महफूज मकाम में आके दाखिला लेके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह इन तमाम कामों को कबूल फरमाए। और फ्री डायलिसिस का इंतज़ाम है, वो बहुत सारे मिशन लगाए गए हैं। फ्री जो डायलिसिस लेना चाहते हैं, खिदमत हासिल कर लेना चाहते हैं, वो भी यहाँ आके उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए सबील जंतरी आज जो है मोबाइल और इंटरनेट का दौर है और इस दौर में भी जो है इन्होंने इस रिवायत को बरकरार रखा है, जारी रखा है, ज़िंदा रखा है। माजी से रिश्ता कभी नहीं कटना चाहिए, चाहे दुनिया कितनी भी तरक्की कर जाए। आप कुरान देख करके ही पढ़ें, उसकी बरकत मिलेगी, नूरानियत मिलेगी। ये चीज़ आपकी पॉकेट में होगी, सबील जंतरी आपकी पॉकेट में होगी, आपको एहसास दिलाती रहेगी। आपको कहीं किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो इससे आपको दस्तयाब हो जाएगी। बहुत सारे लोग मोबाइल चलाना नहीं जानते, उसका इस्तेमाल नहीं जानते, तो उन सब के लिए यही चीज़ें सूदमंद होती हैं। और जो है यकजा जो है सारी चीज़ों का मिल जाना, ये उस पर नहीं होता है। नेट पर आपको अलग अलग में जा कर के तलाश करना पड़ता है। तो एक आलिम दीन है हबीब साहब जो है, हबीब रशादी साहब, मौलाना हबीब रशादी साहब, और इमामत भी करते हैं, खिताबत भी करते हैं और इस तसनीफ़ और तालीफ से भी जुड़े हुए हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूबियों से नवाजा है। आदमी को अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाना चाहिए और इस्तेमाल में लाने के मौके उनके ज़िम्मेदारों को देना चाहिए। उलमा के अंदर बहुत सारी सलाहियतें आप देखते होंगे, हर मैदान में आपको नज़र आते हो। जहाँ सहूलियात है वहाँ उलमा आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ उनकी पकड़बंदी है वहाँ महदूद होकर रह जाते हैं। तो ज़िम्मेदारों को वसअत नज़र के साथ खिदमत के मौके फराहम करना चाहिए। मौलाना हबीबुर रहमान रशादी जो मुसलसल 15 सालों से सबील जंतरी, ये सबील जंतरी के नाम से एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन, एक बेहतरीन मालूमाती, एक पॉकेट साइज़ छोटी सी एक डायरी के अंदाज में उन्होंने एक सबील जंतरी को जो है 15 साल से वो बनाते आए हैं और लोगों में जो है उसे आम करते हुए आए हैं सबील जंतरी। इसमें दीनी मालूमात, मजहबी मालूमात के अलावा जनरल नॉलेज, जैसा कि अस्पताल कहाँ पर हैं, ब्लड डोनेशन काम कहाँ पर है, किडनी के फेल्यूर अफराद के लिए डायलिसिस सेंटर कहाँ पर फराहम हैं, और उलमा इकराम, डॉक्टर हजरात, इंजीनियर, IAS अफसरान, IPS अफसरान, बिल्डर, डेवलपर, ये तमाम लोगों के जनरल मालूमात भी दीनी मालूमात के ताल्लुक़ से इसमें फ़राहम है। ये जंतरी का जो है आज रस्म इजरा, यानी 15वें एडिशन का रस्म इजरा अमल में आया। मेरे अज़ीज़ दोस्त मौलाना हबीबुर रहमान साहब रशादी को मैं दिल की अमीर गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम कर्नाटक के शहरियान बेंगलुरु के तमाम उलमाए कराम, असातिज़ा, तलबा व तालिबात और अवामुन्नास को अपील करता हूँ कि ये जो जंतरी है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस जंतरी को मौलाना हबीबुर रहमान साहब के बज़रिए जो है हमीद शाह कॉम्प्लेक्स की मस्जिद में ख़तीब व इमाम हैं हासिल करके ज़्यादा से ज़्यादा
इस जंतरी के ज़रिए से मालूमात हासिल करें।